Assalamualaikum everyone. Welcome to the session. Today we are going to discuss about the how can we get the internship opportunities and how can we get the job opportunities on the LinkedIn in 2025. But most importantly, how can we build our strong personal brand on LinkedIn? But before that, I would like to tell you something that I grow my LinkedIn 30,000 plus followers in just 8 months. And if you also want to grow like this, so welcome to this session. And one more thing, but before jumping into the session, I would like to quickly introduce myself that I am Sana Arif from Pakistan, the co-founder of the SI Tech company and the branding and marketing expert with over 7 years of experience. And currently I am working as a manager in Philippines and I'm actively collaborating with the freelancers from UAE, US, and Germany. And I believe whatever you are a freelancer or you are a student or you are an entrepreneur, this session is going to be very beneficial for you because personal branding is your biggest assist in today's digital world. So this session is going to be very helpful for you. So one thing I want to clear it out here before start the session, the everything I will be explain here all come from my own experience, tested, proven, and from the real examples. And I confidently believe after completing this session, you can be able to build your strong personal brand on the LinkedIn in just 2 months. So let's move to the screen. One of the most important part of your profile is your profile picture. So it should professional and 60 to 70% area of this circle filled with your face should be filled with your face, and it should be your front facing picture, and please avoid the casual and your childhood picture, and please also avoid the selfie. If you can take the pic from the back camera, it will be great. And one more thing I want to add here that please avoid your whole body. समटाइम क्या होता है कि हमारी जो पिक्चर होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, तो हमारा जो फेस है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए कि बेसिकली हम कौन हैं। और एक और चीज़ कि अपना जब ब्रांड का कलर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा जो ब्रांड का कलर है वो येलो कलर है और मेरी कंपनी के ब्रांड का कलर भी यही है। सो आपने कलर चूज़ करने से पहले ये चीज़ अच्छे से माइंड में रखनी है कि वो आपके जो व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक बैकग्राउंड है, उन दोनों पे अच्छे से विज़िबल होना चाहिए। बिकॉज़ हम नेक्स्ट इन फ्यूचर में हम जो पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स में उसको सेट अप मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जस्ट एक ही लाइक व्हाइट बैकग्राउंड पे देखेंगे, अगर वो ब्लैक बैकग्राउंड में विजिबल नहीं होगा, तो हमारा समटाइम हमें उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ जाता है। तो आपने अपना ब्रांड कलर जो है बहुत अच्छे से चूज़ करना है। सो एंड आल्सो यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन दिस कैमरा आइकन। And the second thing is LinkedIn Premium subscription. If you literally want to do the business, you need to buy the LinkedIn Premium subscription first, and I recommend because you can check the slideshow feature option only visible for the LinkedIn Premium users. सो अगर आपका लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना एक ही बैनर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। लाइक आप अपनी प्रोफाइल में कौन सा जो है पर्सन आया है, कौन सा क्रिएटर आया है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको बिकॉज मैं मोस्टली जो पर्सनलाइज कनेक्शंस होते हैं, लिंक्डइन प्रीमियम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लिंक्डइन प्रीमियम बाय करके ही चलें अगर आप अच्छे से बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं। बिकॉज लिंक्डइन प्रीमियम अगर किसी ने बाय नहीं किया, समटाइम हमें रिस्ट्रिक्शन की जो है वो भी रिस्ट्रिक्शन भी फेस करना पड़ जाता है। वो इस वजह से कि अगर हमने लिंक्डइन प्रीमियम बाय नहीं किया होता तो जो अकाउंट है वो बैन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम उस पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर देते हैं जो कि हमें में भी समझ नहीं आती, लेकिन अकाउंट हमारा बहुत जल्द बैन हो जाता है। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप वाक़ई में अपने बिज़नेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आपको लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करना ही होगा। And the next thing is your banner. Your banner should be look like a billboard. When our client visited your profile, they can get the idea that which what you are doing here and which type of services you are selling here. So this is a very main and important part, I guess.
So you can check my banner as यू कैन चेक माई फर्स्ट बैनर। सबसे पहले हमें जो चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारी हेडलाइन, मेन हेडलाइन। तो मैं यही चीज़ प्रेफर करूँगी कि आपकी जो प्रॉपर नीश होगी आपने उसके अकॉर्डिंग एक हेडिंग बनानी है, अपने मेन कीवर्ड्स और प्रॉपर सीओ के साथ करके आपने उनको मर्ज करके एक हेडलाइन बनानी है। जैसे मैंने बनाया हुआ है कि हेल्पिंग यू अचीव मार्केटिंग सक्सेस विद विजुअल स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी। बिकॉज मैं मार्केटिंग भी करती हूँ और विजुअल्स भी, उसमें भी मुझे एक्सपर्टीज है मेरी। सो दैट्स व्हाई मैंने उन सब अपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको मैंने मर्ज करके एक मेन हेडलाइन बनाई है, जो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी लिखी हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट लिंक्डइन algorithm, you can paste your photo in the middle of the banner. Okay, and make sure whenever you are trying to set your banner, ऑलवेज आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने उसको अपने फोन के अकॉर्डिंग भी जो है रेडी करना है। बिकॉज समटाइम हम यहाँ पे तो बैनर बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो हमारा जो हाफ डिजाइन होता है वो मोबाइल से नजर नहीं आ रहा होता। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो आपके मोबाइल पे भी अच्छे से विजिबल होना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज लाइक ट्रस्टेड बाय यूएस, कनाडा, यूएई, जर्मनी एंड फिलीपींस। बिकॉज मैं इन कंट्रीज में वर्क कर रही हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज में। तो मैंने यहाँ पर उनके ट्रस्टेड शो किया हुआ है, आप अपनी भी शो कर सकते हैं। लाइक अगर तो आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर उस कंपनी को मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप जो है अगर किसी पर्सन के साथ वर्क कर रहे हैं और वो अच्छा क्रिएटर है और आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। एंड द अदर थिंग, योर सीटीए शुड बी वेरी विजिबल फॉर द अदर्स। बिकॉज आपका अगर सिटी अच्छा होगा तो क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे अपना वर्क करवाएगा। तो सो मैंने यहाँ पर एज अ सीटीए अपना लाइक को फाउंडर ऑफ एसआईटेक लिखा हुआ है, बिकॉज आई एम अ को फाउंडर ऑफ द एसआईटेक कंपनी। सो आपका जो बैनर होना चाहिए लाइक वो इस तरीके से चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, use the banner with the educational theme. And one more example, that if you are into the software engineering, use something related to the coding. And the other thing, if you are going to be digital marketing, and use the banner that show your feed. Okay, your field. And the other thing is the you can check the, because मैंने LinkedIn प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है, सो दैट्स वाई मेरे पास विजिबिलिटी है कि मैं LinkedIn के अप टू 5 बैनर जो है वो मैं यूज कर सकती हूँ। और जो सेकंड बैनर है उसमें मैंने अपनी नीश को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके लिखा है, द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट and a senior graphic designer, because there are a lot of many other niche in just graphic design, like you like the 2D design, 3D design, video editing, post designing and many other niche. So मैंने अपनी ब्रांडिंग को जस्ट प्रोमिनेंट करके लिखा है कि बेसिकली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में से कौन सा वर्क करती हूँ। एंड ऑल्सो अगेन सीटीए, you must need to put your CTA on the left side of your banner. Like book a one-on-one session call grow your business. Like मैंने यहाँ पर अपना एक किस्म का कॉल सेशन दिया हुआ है। अब जो भी आएगा उसको पता है कि मैं कॉल के लिए अवेलेबल हूँ और वो जाके मीट मेरे लिए अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेगा एंड देन उस टाइम पे हम मीटिंग कर लेंगे। तो आपका सीटीए प्रोमिनेंट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। लाइक वो बैनर यू नो दैट बहुत सिमिलर सा होता है तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होता, तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अच्छे से विजिबल हो। And in the third banner I just show my achievement. You can also show your achievement, yeah, like if you get something from your university or from your college, you can put it over here to show the people that show your achievements, that I grow my LinkedIn to 30,000 plus followers in just 8 months. Join me to boost your LinkedIn 10x फास्टर। सो आपने भी कुछ ऐसी अचीवमेंट शो करनी है यहाँ पर कि लाइक कोई भी अगर पर्सन फर्स्ट टाइम आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उसको इम्प्रेस होना चाहिए आपकी प्रोफाइल से। आपकी प्रोफाइल शो करनी चाहिए कि आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं।
And the one more idea that you can also put a little bit part of your portfolio on your banner just to show your skills. So मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट जो है अपने पोर्टफोलियो को वो ऐड करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी अगर मेरी प्रोफाइल पे आता है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके, आइडिया ले सके कि मैंने अपनी स्किल्स को कितना पॉलिश किया हुआ है। तो आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो का कोई छोटा सा, कोई सबसे बेस्ट जो काम आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो विजिटर हैं उनको आपके वर्क के बारे में आइडिया हो सके। तो ये सब कुछ था बैनर के अकॉर्डिंग। एंड द वन मोर एंड अदर थिंग इज, and the third part, and main and third part is your heading, your main headline. And also I want to share something that please, कि जब भी आप लिंक्डइन के हेडलाइन को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कि आपने यहाँ पर मेन कीवर्ड्स के साथ अपनी नीश को रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ तब हुआ कि सम टाइम मेरे पास क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे इस चीज़ का कहा कि हमने आपको जो है आपकी नीश को जस्ट सर्च करके आपको फाइंड आउट किया, नॉट बिकॉज कि उन्होंने मेरा नाम सर्च आउट किया है, उन्होंने मेरी फील्ड लाइक उन्होंने मार्केटिंग एक्सपर्ट और ब्रांडिंग एक्सपर्ट समथिंग सर्च किया होगा, और मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल में कीवर्ड्स को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। लाइक हमें हमारी जो हमारी प्रोफाइल है वो क्लाइंट के लिए मैग्नेट की तरह होनी चाहिए, कि वो क्लाइंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करवा सके। और बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैनी अदर टैलेंटेड क्रिएटर्स, सो हमें यहाँ पर अपना बेस्ट देना है। तो आपकी जो हेडलाइन है वो मेन कीवर्ड्स होनी चाहिए, लाइक आई एम बेसिकली आल्सो ग्राफिक डिजाइनर, सो सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, दिस इज माय मेन कीवर्ड, एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, दिस इज माय अनदर कीवर्ड। सो आपने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो जो आपके मेन कीवर्ड हो। समटाइम you can if you are like owner, you can share your achievement here, so ये एक अच्छा impact create करता है। And if you are a student, you can uh, put over here the student at ABC school, student at ABC college, student at ABC university. You can mention the name of your university, so it's also a great impact on your profile. And also, and if you are a worker or you're an entrepreneur, you are a freelancer, whatever you are working according to your niche, set your headline with the proper keywords. And the next and the fourth thing is your about section. There you need to set your about section with the proper keywords, that whenever every visitor or a client or a creator visited your profile, only by just reading your one line they can get the idea that what you are doing here and what you are selling here. So because you can check my first line that I am a senior graphic designer, branding and logo expert with pro skills, having a 7 years of experience with proven record. So कि वो जब भी मेरी प्रोफाइल में आएंगे वो पहली लाइन ही रीड करके आइडिया ले लेंगे कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और मेरा क्या काम है। सो उसके बाद मैंने 1.5 लाइन में थोड़ा सा अपना पैशन और अपना वर्क शेयर किया हुआ है, कि मैं जो है अपना पूरा पैशनेट अबाउट माय वर्क एंड वेरी डिलाइटली ओरिएंटेड। सो मैं कंप्लीटेड 10K प्लस प्रोजेक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट शो की है कि क्लाइंट को पता चले कि ये एक बिगिनर नहीं है, इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बिकॉज जब भी कोई क्लाइंट आता है वो एक प्रोफेशनल से वर्क करवाना चाहता है, हर कोई। इवन हम भी अगर खुद भी अपना वर्क करवाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक अपना काम एक प्रोफेशनल बंदे से डन करवाएं। तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से विजिबल होना चाहिए। एंड देन एक लाइन में मैंने बताया कि द को फाउंडर ऑफ द एसेट टेक कंपनी, आई हैव अ बेस्ट टीम। एंड द अदर थिंग 1.5 लाइन में अगेन मैंने अपना मिशन जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। लाइक मैंने अपना मिशन बताया हुआ है कि मेरा मिशन क्या है, आप भी यहाँ पर वो शेयर कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि पूरे पूरे पैराग्राफ्स यहाँ पर लिख के लगा देते हैं, और टू बी ऑनेस्ट वो कोई भी नहीं रीड करता। तो मेक श्योर कि आप इस टाइप की जो अपनी पूरी स्ट्रक्चर है अबाउट सेक्शन का बनाएं कि हर कोई उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। एंड देन अदर थिंग इज ओवर सर्विस सेक्शन। ओवर सर्विस सेक्शन में मैंने अपनी सर्विसेज शेयर की हुई है कि मैं कौन सी लाइक सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मीन्स कि मैंने अपने अबाउट सेक्शन में बहुत छोटा सा उसको एक्सप्लेन की हुई है चीज़ें।
तो आपने भी मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ें पुट नहीं करनी और ना ही बड़े-बड़े पैराग्राफ्स करने हैं। जैसे आप लाइक चेक कर सकते हैं कि मैंने एक लाइन में अपना इंट्रो छोटा-सा दिया एंड देन मुझे शॉर्ट-शॉर्ट लाइन्स 2 यूज़ की अपने पैशन के तौर पर और मैंने बताया कि लाइक आई एम अ को-फाउंडर एक हाफ 1 एंड हाफ लाइन में एंड देन उसके बाद मैंने 1.5 लाइन में जो है ना वो मैंने अपना मिशन जो है वो उसको कर दिया एंड देन मैंने अपनी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर अपने कीवर्ड्स के साथ अरेंज की हुई है। आपकी जो भी फीड है आप लाइक आपकी अगर कंपनी है, कंपनी के बारे में लिखना चाहते हैं, अपने कॉलेज के बारे में लिखना चाहते हैं, आप क्या करते हैं और आप क्या करें, लाइक आपकी कोई अचीवमेंट, आप कुछ भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। लाइक अगर तो आप एक अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो अपनी प्रोफाइल को आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ ही आपने सेट करना है। एंड उसके बाद आपने टॉप स्किल्स आपने यहाँ से जो है अपने टॉप स्किल्स ऐड करने हैं। कोई भी हम अपने 5 टॉप स्किल्स ऐड कर सकते हैं जो लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, लोगो डिज़ाइन, कस्टम लोगो एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी निश के अकॉर्डिंग जो है 5 मैन टॉप स्किल्स ऐड किए हैं, ये मस्ट हैं, आपने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड सर्विस सेक्शन में हम 8 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को शो करवाने के लिए। लाइक आप क्या वर्क करते हैं, आप यहाँ पर क्लाइंट को शो कर सकते हैं कि आप क्या वर्क करते हैं। Like whenever client visit my profile, they can get idea that I'm expert in the making the custom logos and also the book cover and also the minimal and 3D logos. So मैंने यहाँ पर अपना अपने पोर्टफोलियो का जस्ट अ लिटिल बिट पार्ट मैंने अपना यहाँ पे शो किया हुआ है कि मेरे क्लाइंट को आइडिया हो सके कि बेसिकली मेरे स्किल्स कितने पॉलिश हैं। तो आप अपना जो भी वर्क है, अच्छा वाला वर्क है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर कि आपने कोई भी इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके प्रॉपर आपने कीवर्ड्स के साथ उसको यूज़ करना है। लेट मी शो यू uh, like you can check in this it's a book cover design maybe. So let me open it up. It's a book cover design. You can check the कि मैंने यहाँ पर लिखा है विल डू प्रोफेशनल बुक कवर डिजाइन, ई बुक एंड पेपर बैग, लाइक अ प्रोफेशनल बुक कवर डिजाइन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। लाइक आपने यहाँ पर अपनी प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ये सारे कीवर्ड्स हैं, बुक कवर डिजाइन, ई बुक एंड पेपर बैग, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज हुए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो सर्विस सेक्शन है उसमें 8 इमेजेस यूज होंगी और उन 8 इमेजेस में प्रॉपर आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये तो बुक वाला था जिसमें मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, और फिर ये एक लोगो वाला है जिसमें 3D लोगोस है, विल डिजाइन अ प्रीमियम मॉडर्न 3D बिजनेस डिजाइन लोगो डिजाइन। सो आपने इस तरीके से अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, वो ये है कि विल डिजाइन इज टर्निंग 2D एंड 3D लोगो डिजाइन फॉर योर ब्रांड। सो इट मीन्स के अब यहाँ पर आप चेक कर लें, इस इमेज के अकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ है आई विल डिजाइन अ डीजे म्यूजिक बैंड एंड द टाइपोग्राफी लोगो। सो अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लें, विल डिजाइन अ बिजनेस ब्रोशर, कंपनी प्रोफाइल, फ्लायर, पोस्ट। सो आपकी जो नीश है, आपने उस नीश के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो का जो पार्ट होगा बेस्ट वाला, आपने यहाँ पर वो 8 इमेजेस लगानी है एंड विद द प्रॉपर कीवर्ड्स। आपकी जो नीश है उसके प्रॉपर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऑलराइट, और अगर लाइक ये आप पूरी तरीके से आपकी नीश के अकॉर्डिंग होगा तो क्लाइंट को पता भी चलेगा कि वाकई में आपकी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है, और जब भी वो कोई कीवर्ड पे रिसर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को वो टॉप पे पाएंगे। तो ये मस्ट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। सर्विस सेक्शन में और थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी होती है तो मेक श्योर कि आपने वो भी ऐड की हो। इमेजेस को कंप्लीट करने के बाद और उनके प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं सर्विस सेक्शन में, उनको भी ऐड कर लेना है। और ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने बारे में थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में लिखा है और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। और जस्ट थोड़ा सा जो है ना, वेन एवर अगर क्लाइंट जो है समटाइम हमारी सर्विस बाय करना चाह रहे हैं तो हमारी सर्विस सेक्शन पे जाके हमें रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हमने आपकी सर्विस बाय करनी है। तो फिर इससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट को ये सर्विस चाहिए, तो हम वहाँ से भी प्रोजेक्ट जो है वो डन हो जाता है समटाइम। और यू कैन चेंज एनी सेटिंग बाय क्लिकिंग ऑन दिस पेंसिल आइकन। एंड अगेन
हमें सर्विस सेक्शन में भी प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ अपने जो नीश के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स हैं उनको सेट करना होगा, जो हमारी नीश के अकॉर्डिंग है। ओके। और बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रोफाइल पूरी फिल होनी चाहिए अगर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो मेन चीज़ हमारी प्रोफाइल होती है कि हमने उसकी एक-एक चीज़ जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से सेट करनी है। और ये कुछ रिव्यूज़ का सेक्शन है। हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज के सम टाइम लाइक हमने किसी से वर्क करवाया है, हम उसको रिक्वेस्ट भेज के रिव्यू भी ले सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से कोई आने वाला विज़िटर होगा, उसको पता होगा कि इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं और हम इससे वर्क करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा फीचर सेक्शन, आई थिंक सो दिस इज़ द मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोफाइल। सो मैं इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से मैं डीप वे में लूँगी, इस सेंस में कि यही मेन जो वजह होती है कि क्लाइंट हमसे जुड़ता है और हमसे प्रोजेक्ट डन करवाता है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी यही सेक्शन एक है। वो इस सेंस में कि आप यहाँ पर अगर चेक करें कि मैंने कैलेंडली का यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है कि व्हेनेवर क्लाइंट कम टू माय प्रोफाइल एंड दे कैन जस्ट क्लिक ऑन द कैलेंडली लिंक and they can book the appointment according to my availability and their availability, and after that I will do the Google Meet with the client and we can done our project. So I think this is the main important part, and I also put the Fiverr profile link here and for the my client testimonial, because I have done a lot of work for my clients and I have a lot of testimonials. So that's why I link my Fiverr profile here for just to getting the idea the which type of work I am doing here, and they can check the testimonials from my clients. And also I shared the Facebook link, it's my company page link. So मेरी जो है फेसबुक पे भी अच्छी खासी कम्युनिटी है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जस्ट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ पे जो है वो लगाया। आप जिस भी दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वर्क कर रहे हैं, आप उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बट विद आपको मेन चीज़ है कि ये इमेजेस डिज़ाइन करनी होंगी विद अकॉर्डिंग टू योर कलर थीम। आपकी जो प्रोफाइल है वो आपने पूरी ऑप्टिमाइज करनी है अकॉर्डिंग टू योर कलर थीम, कि आपका जो भी कलर थीम होगा उसको आपने स्किप नहीं करना। जो भी आपने कलर मेन चूज किया है आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी पूरी प्रोफाइल को सेट करना है। और ये जो आप लाइक चेक कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ है कि हमने नीचे ये जो लाइन्स लिखनी है, ये बहुत ज़्यादा कुछ लोग लंबी लिख देते हैं, तो हमारी आइकन्स वो छोटे हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर जस्ट जो ऑर्डर होता है वहाँ पे लिखना होता है और डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देनी होती है। यहाँ से आप इसको जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और लाइक हर एक जो भी मैं जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ एक पेंसिल आइकन बना होता है, तो आपने वहाँ से उसको सेटअप कर लेना। और एक्सपीरियंस सेक्शन आपने फिल करना है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन फाइवर, अपवर्क, freelancer.com और guru.com और वट एवर यू आर डूइंग। सो आपने यहाँ पर जो है अपनी शो करना, जैसे आप अगर किसी कंपनी के ओनर हैं तो यू कैन शेयर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, लाइक आई एम द ओनर ऑफ द सेटा कंपनी, सो दैट्स व्हाई मैं अपनी कंपनी को शेयर किया। मैं फाइवर पे वर्क करती हूँ एंड देन लिंक्डइन पे वर्क करती हूँ एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो आपने जो आपके मेन जो प्लेटफॉर्म्स है आपने यहाँ पर उनको लिंक करना है, ताकि अब मेरी जो प्रोफाइल है उस पे कोई भी आता है तो वो मेरी जो फाइवर प्रोफाइल का लिंक होता है वो फ्रंट पे लगा होता है, तो वो इजीली उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो लाइक मेरी फाइवर प्रोफाइल पे डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ पे क्लिक एंड इम्प्रेशंस भी इंक्रीज। तो मेरा ये मानना है कि हमारी प्रोफाइल फुली अप टू डेट होनी चाहिए, बिकॉज जब भी क्लाइंट आता है तो यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से फिल अप होनी चाहिए। लाइक एक्सपीरियंस जो आपका सेक्शन है इसमें भी आपने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ जो है अपना सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, लाइक आई एम डूइंग अ फ्लेक्सिबल ग्राफिक डिजाइनर विद अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ delivering एक्टिव क्रिएटिव इनोवेशन डिजाइन सॉल्यूशंस, आई हैव लाइक एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर हर एक चीज़ जो है अपना अपनी नीश के अकॉर्डिंग डालनी है। तो लाइक अगर यहाँ पे आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो आपने अपने कंपनी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बतानी है कि आप अपनी कंपनी में क्या कर रहे हैं, और मेन चीज़ें जो हैं आपने पूरे प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ करनी है। और यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन शो करनी है, जो भी आप यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं या जिस चीज़ में वर्क कर रहे हैं आपने अपनी लाइक आई हैव डन माय मास्टर डिग्री, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से जो है आपने एजुकेशन ली। तो आप यहाँ से इजीली पेन टूल जो है, बाय क्लिकिंग ऑन दिस पेन टूल यू कैन चेंज एनी
the settings according to your choice. And the other thing is skill section. This is the most important part. So it should be about the 30 प्लस. तो आपके जो स्किल्स है वो 30 से अबव होने चाहिए, जो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं. तो या अभी तो आपको फिलहाल ट्रिकी लग रहा होगा कि 30 से ऊपर स्किल, 30 स्किल्स बहुत है, बट नो, इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी. ये बहुत ज़्यादा इजी है, वो इस सेंस में कि आप जब भी किसी फील्ड में आते हैं ना, तो आपके पास इतने स्किल्स हो जाते हैं. जब आप इस पे पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो जाते हैं. और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो भी कोई क्लाइंट होगा, तो लाइक इंडोर्समेंट करके जाते हैं. लाइक आपकी प्रोफाइल पे जो भी कोई अदर क्रिएटर आएगा, उसको लगेगा कि आपकी स्किल पॉलिश है, तो वो यहाँ पर आपकी स्किल को इंडोर्समेंट करके जाएगा. अब जैसे लाइक मेरी जो पहली स्किल है, उस पे 47 लोगों ने जो है वो इंडोर्समेंट की हुई है. लाइक 47 लोगों ने इस पे क्लिक किया हुआ है कि ये इंसान जो है वो अच्छा काम कर रहा है. बट मैंने किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि आप लाइक इंडोर्समेंट करें या एनीथिंग एल्स. बट ये हर किसी क्रिएटर की अपनी एक लाइक यू कैन से द, अगर कोई चाहता है कि अब हम प्रूफ दें इस चीज़ का कि वो अपनी अपनी जो नीश है उसमें प्रोफेशनल है, तो यहाँ से आके बहुत से लोग इंडोर्समेंट करके जाते हैं. तो 47 लोगों ने जो है वो मुझे इंडोर्स किया हुआ है कि इसके स्किल पॉलिश है, विदाउट एनी रिक्वेस्ट. सो एंड ऑल्सो रिकमेंडेशन सेक्शन. आपने अपनी जो भी क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं, आपने जिस भी क्लाइंट के साथ वर्क किया, आप उसको बोलें कि आप हमें रिकमेंडेशंस दें. रिकमेंडेशन मीन्स कि आपको रिव्यू दें. आपको काम करने के बाद आपके क्लाइंट को आपके साथ काम करके कैसा लगा, यहाँ पर जो है आप वो ले सकते हैं. यहाँ पर मेरी यूके की जो है क्लाइंट है, मैंने उनको सेशन वगैरह दिया था, तो वहाँ से लाइक उन्होंने अपना रिव्यू जो है रिकमेंडेशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हमने अपनी प्रोफाइल में अगर तो ज़्यादा पॉसिबल हो हम ओरिजिन क्लाइंट्स से ही रिकमेंडेशन लें, तो ही ज़्यादा बेहतर है. तो ये चीज़ है कि हम जो अपने ओरिजिन क्लाइंट्स होते हैं उनसे honest वाला रिव्यू लेते हैं. समटाइम यू नो दैट इट्स वेरी ट्रिकी टू जस्ट कन्विंस द क्लाइंट. तो उस सेंस में हमें इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखना है. अगर क्लाइंट ने रूडली बिहेव कर लिया, तो हमें उससे रिकमेंडेशंस का नहीं कहना, बिकॉज ये हमारी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है. अच्छे क्लाइंट से आप कह सकते हैं रिकमेंडेशंस लेने के लिए. सो यहाँ से आप लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं. होप कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हो. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. कीप लर्निंग एंड स्टे हंग्री फॉर योर एम्बिशियस. गुड बाय.